بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی اور آپ نے پچھلے ہفتے معاشرتی علوم کی پہلی کلاس کو دلچسپی سے دیکھا ہوگا اور اسے سمجھا بھی ہوگا اور اس کا کام جو ہے وہ بتائی گئی ہدایات کے مطابق کر بھی لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ باب نمبر 5 ہے آپ کی کتاب کا، جس کا نام ہے اہم زمینی خدوخال۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 34 یعنی 34 ہے، ٹھیک ہے طالبات؟ زمینی خدوخال کے بارے میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو زمین تو آپ جانتے ہیں کہ زمین کسے کہتے ہیں، اور خدوخال سے مراد ہوتی ہیں شکلیں، نقش، ٹھیک ہے، مختلف شکلیں زمین پر۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کئی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہاڑ بھی ہوتے ہیں، پہاڑ بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اونچے نیچے پہاڑ ہوتے ہیں، کوئی بالکل ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جو نوک دار ہوتے ہیں، کوئی فلیٹ ہوتے ہیں یعنی جن کی سطح تھوڑی ہموار ہوتی ہے۔ اسی طرح دریا آپ کو زمین پر نظر آتے ہیں، سمندر ہیں، ٹھیک ہے، پانی یعنی پانی کی سطح بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ زمین کے انہی خدوخال کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ یہ دراصل ہیں کیا، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو سب سے پہلے زمینی خدوخال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، زمین پر کچھ قوتیں عمل کرتی رہتی ہیں۔ قوتیں سے مراد یعنی کوئی ایسی پاورز یا کوئی ایسی چیزیں، مختلف تبدیلیاں جو رونما ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سیلاب آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو وہ جو قوتیں عمل کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک طاقت جو ہے وہ زمینی نقوش کو ابھارتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زمین کا کوئی حصہ جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے تو دوسری بلند سطح کو کاٹ کر ہموار کرتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا تو وہ مٹی اور جو ان کا تودے وغیرہ گر کر ان کی سطح جو ہے وہ فلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح زمین پر مختلف نقوش وجود میں آتے ہیں اور ان نقوش کو ہم زمینی خدوخال کہتے ہیں۔ یعنی آپ سمپل وے میں اس کو، آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ زمین پر جس قسم کی مختلف تبدیلیاں، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، زلزلے وغیرہ، تو ان کی وجہ سے زمین کی سطح پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو اس کی وجہ سے جو مختلف شکلیں زمین پر بن جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم زمینی خدوخال کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اب اس کی اقسام کیا ہیں، یعنی کتنی قسموں کی زمینی خدوخال ہوتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو مثال دی پہاڑ، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ تو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ سطح مرتفع، کیا لفظ ہے یہ؟ سطح مرتفع۔ اس کے بارے میں بھی اب اسی چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ سطح مرتفع کیا ہوتی ہے۔ اور دریاؤں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے یقیناً، بہت سارے دریا شاید آپ کی نظر سے گزرے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو یہ زمینی خدوخال کی 3 اقسام ہیں، ایک پہاڑ، ایک سطح مرتفع اور ایک دریا۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی آج کی کلاس میں ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ہے پہاڑ۔ اب وہ کہتے ہیں، اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ عام طور پر اس نقش کو کہتے ہیں جو زمین سے کم از کم 900 میٹر بلند ہو۔ یعنی زمین سے جو بھی سطح جو ہے وہ 900 میٹر بلند ہوگی تو اسے ہم پہاڑ کہیں گے۔ اگر اس سے کم ہوگی تو پھر وہ پہاڑ نہیں کہلائے گا۔ اس کی آدھی سے زیادہ سطح جو ہے وہ عمودی ہو، عمودی کہتے ہیں یوں، ایسے سیدھی، اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے نا، جسے آپ ہاریزونٹل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں آپ لوگ، جیسے 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے نا، تو بالکل ایسی، مطلب اس کی سطح جو ہے بالکل ایسا بھی نہیں کہ بالکل 90 ڈگری کا اینگل ہو، لیکن اونچا ہو، یعنی کھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اونچے ہوتے ہیں اس لیے یہ موسم، آب و ہوا اور دریاؤں کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی پانی جو ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں
तो पानी बारिश का जो है वो इन्हीं पहाड़ों से तेज़ी से नीचे की तरफ बहता हुआ आता है और फिर इन्हीं पहाड़ों से बहता हुआ दरियाओं की सूरत में समंदर से जा मिलता है। ठीक है, तो पहाड़ों से जो पानी नीचे आता है वो किसकी सूरत में आता है, वो आबशारों की सूरत में आता है। आपने देखी होंगी, अगर आप नॉर्दर्न एरिया शुमाली इलाका जात की सैर वगैरह को गए हों, नारायण कागान वगैरह, तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पर पानी जो है वो ऊपर पहाड़ों से नीचे गिर रहा होता है। ठीक है बेटे, फिर वो कहते हैं कि बरे आज़म जो हमने, याद है आपको पिछली क्लास में हमने बरे आज़मों के बारे में पढ़ा था। कितने बरे आज़म होते हैं दुनिया में, कितने बरे आज़म हैं? आपको शायद याद होगा, दुनिया में कितने बरे आज़म हैं? दुनिया में 7 बरे आज़म हैं। कितने बरे आज़म हैं? 7 बरे आज़म हैं। तो वो कहते हैं कि पहाड़ों, जो पहाड़ हैं, अब किस बरे आज़म में कितने हिस्से पर पहाड़ है? तो एशिया में जो है वो 54% यानी 54%, शुमाली अमेरिका में 36% यानी 36%, यूरोप में 5% यानी 5%, जनूबी अमेरिका में 22% यानी 22%, ऑस्ट्रेलिया में 11% यानी 11%, और अफ्रीका में कितने हैं? 3% यानी 3%। ठीक है, यानी हर बरे आज़म में इतने फीसद पहाड़ मौजूद हैं। अब वो कहते हैं कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है, शायद आपने उसका नाम सुना भी होगा, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। और गुंजान आबाद पहाड़ी सिलसिला, गुंजान आबाद से मुराद ये कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो। जैसे उमूमन पहाड़ी जो इलाके होते हैं ना, वहाँ पर आबादी कम होती है, लेकिन दुनिया में एक पहाड़ी सिलसिला ऐसा भी है जो जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, और वो कौन सा है? वो है इंडीज़। इसको क्या कहते हैं? कोहे इंडीज़। फिर ये पहाड़ तो होते हैं ज़मीन की सतह पर, इसी तरह समंदर की सतह पर भी पहाड़ होते हैं। तो उसकी जो बुलंद चोटी है वो क्या कहलाती है? माउंट की। ये जजीरा हवाई के करीब मौजूद है। अच्छा, जजीरा किसे कहते हैं? जजीरा कहते हैं खुश्की का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है बेटे, जजीरा किसे कहते हैं? खुश्की का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। अब आगे देखिए, पहाड़ों की अक़साम कितनी होती हैं, यानी कितनी किस्म के पहाड़ होते हैं। एक होते हैं मलफूफा पहाड़, एक होते हैं ब्लॉक नुमा पहाड़, और एक होते हैं आतिशफ़शां पहाड़। ठीक है, मलफूफा पहाड़, ब्लॉक नुमा पहाड़ और आतिशफ़शां पहाड़। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर देखिए तो आपको इनके जो है तफसीलात जो है वो नज़र आएंगी। देखिए, मलफूफा पहाड़ में वो कह रहे हैं कि ये पहाड़ ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतों और हरकत के बायस वजूद में आते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उनकी वजह से ये पहाड़ जो है वो बन जाते हैं। और इसकी अहम मिसालें कौन कौन सी हैं? कोहे हिमालय, कोहे इंडीज़ और कोहे रॉकीज़। ठीक है, दूसरा आपका जो पहाड़ों की किस्म है, अगर आप तस्वीर में देख रही हो ना तो आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, मलफूफा पहाड़ जो है वो कैसा है? ऊपर की तरफ उठा हुआ। उसके बाद दूसरा देखिए ब्लॉक नुमा पहाड़। अब ब्लॉक नुमा पहाड़ देखिए कैसा है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहाड़ ज़मीन में शिगाफ कहते हैं दरारों को, जो दरारें पड़ जाती हैं ना उमूमन दीवारों में भी, शिगाफ पड़ जाने के बायस वजूद में आते हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली दरारें इसकी सतह को अलहदा ब्लॉकों में तकसीम कर देती हैं, और अगर इस अमल के दौरान किसी ब्लॉक का एक पहलू इर्द गिर्द की सतह से ऊपर उभर आए तो उसे ब्लॉक नुमा पहाड़ कहा जाता है। यानी क्या होता है कि जब ज़मीन में शिगाफ पड़ते हैं तो उसकी सतह जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है ना, कोई हिस्सा थोड़ा सा नीचे हो जाता है, कोई थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो उनमें से जो हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक नुमा पहाड़ कहते हैं। ठीक है बेटे, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 देखिए। आपको पहाड़ की तीसरी किस्म जो है वो बताई गई है, और इसका नाम शायद आपने सुना भी होगा। ये तीसरी किस्म है आतिशफ़शां पहाड़। आतिशफ़शां पहाड़ जो है वो ज़मीन की, ये पहाड़ आतिशी मादे के सतह ज़मीन पर पहुंचकर मुंजमद हो जाने से यानी जम जाने से बनते हैं। और इन पहाड़ों की शक्ल का इन्हिसार लावे की नौइयत पर होता है, यानी इसके अंदर जो लावा होता है अगर वो पतला हो तो दहाने से दूर तक बह निकलता है, और पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। ठीक है, और अगर लावा गाढ़ा हो यानी थिक हो तो फिर पहाड़ उस सूरत में ऊंचा होता है।
माउंट मानालो जो है वो एक बुलंद आतिशफशा पहाड़ है, ठीक है। अब आतिशफशा पहाड़ को आपको पता होगा अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनोज। आपने अभी एग्जीबिशन में बहुत सारी बच्चियों ने वॉल्केनोज के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाए थे, ठीक है ना, तो ये आप इसके बारे में जानते होंगे यकीनन। अब देखिए उन्होंने दुनिया के अहम पहाड़ों के बारे में बताया है। देखिए सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ये चीन और नेपाल दोनों ममालिक में वाक़ई है। K2 पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो चीन और पाकिस्तान में है। इसी तरह कंचनजंगा जो है ये है भारत और नेपाल में, और नांगा पर्वत ये भी पाकिस्तान में है। फिर बर्राज़मों की बुलंद तरीन चोटियों के बारे में आपको बताया गया है। माउंट एवरेस्ट एशिया में है, और इसी तरह एकानकोगुआ जनूबी अमेरिका, मैकेनिकले जो है ये शुमाली अमेरिका में है, किलिंजारो अफ्रीका में है, अल्बरूस यूरोप में है, विंसन मास एंटार्क्टिका में है, और कार्स्टन्स पिरामिड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है बेटे। तो इस तरह ये आपको समझ में आ गया कि 3 किस्म की ज़मीनें खदोखाल होते हैं, कौन कौन से, एक पहाड़, एक सतह मुर्तफ़ा और एक दरिया। उनमें से हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा कि पहाड़ वो होते हैं जो 900 मीटर कम से कम बुलंद हों और इनकी आधी से ज़्यादा सतह जो है वो अमूदी हो, ठीक है। उसके बाद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। गुंजानाबाद पहाड़ी सिलसिला आपका इंडीज़ है, और समंदरी फर्श की बुलंद चोटी जो है वो माउंट की है जो जजीरा हवाई में वाक़ है। पहाड़ों की अक़साम हमने देखी, मलफूफा पहाड़ वो पहाड़ जो ज़मीन की अंदरूनी तब्दीलियों की वजह से वजूद में आते हैं। फिर उस तरह ब्लॉकनुमा पहाड़ वो होते हैं जो ज़मीन में शिगाफ पड़ जाने की सूरत में वजूद में आते हैं, ठीक है। और आतिशफशा पहाड़ जो है वो आतिशी मादे के बनने से और उसकी तब्दीलियों से जो है वो बनते हैं, ठीक है। अगर लावा पतला होगा तो पहाड़ ऊंचे नहीं होंगे, वो फ़ौरन बह जाएगा, और अगर लावा गाढ़ा होगा तो वो क्या होगा, वो पहाड़ जो है वो उनकी सतह थोड़ी सी ऊंची होगी, ठीक है बेटे। तो ये आज का काम था जो हमने अभी पढ़ लिया। अब आप सवालात की तरफ आ जाइए। सवालात में देखिए पहला सवाल है ज़मीनी खदोखाल की तारीफ, आपको अपनी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर मिल जाएगी, ठीक है, और बोर्ड पर भी मैंने आपको दिखा दी। इसी तरह तीसरा सवाल देखिए, पहाड़ों की अहम अक़साम बयान करें। सफ़ा नंबर 34 और 35 पर इसकी तारीफ, इसका काम जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। तो ये दोनों सवालात हेडिंग्स के साथ, यानी जो जो हेडिंग्स दी हुई हैं उन तमाम हेडिंग्स को बिल्कुल उसी तरह लगाते हुए आपने ये काम अपने जर्नल्स में जो है वो कर लेना है, ठीक है बेटे। तो इस तरह आपका ये 2 सवालात का काम है जो आपने इस दफ़ा इस दिन का, आज के दिन जो है वो आपने करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।